Good afternoon. Good Hello. afternoon, sir. Hmm. I hope you all can see the slides. Question number 1, level 2. Can you all see? Yes, sir. Okay. So we not wasting time. We start it. Okay. Single correct options, level 2. I'll be doing 25 questions today. There are 50 questions, so 1 to 25 today and 25 to 50 next time. A solid sphere of mass 10 kilogram is placed on a rough surface of coefficient of friction is given as 0.1. A constant force of 7 Newton is applied along the line passing through the center as shown in the figure. The value of frictional force. The value of friction is equal to what? So we need the value of F. ठीक है ना? I can say this force, this capital F is going to provide A. So alpha should be this way. And this alpha will be provided by friction in this direction. F. So first equation which I want to write is F net is ma. That is bado F minus choto f is m into a. Second equation which I provide is tau net is I alpha. Torque will become F into R. About the center is I into alpha. It's also okay. And third equation, it is telling that it is rolling condition. Huh? It is accelerated pure rolling. ACM is equal to R alpha. But what is ACM? Bado F minus choto f by m. R. What is alpha? F into R by I. But I will become IC na 2 by 5 R square. हेलो देखो ये R और ये स्क्वायर उड़ गया, ये M और M उड़ गया, तो F माइनस F 5/2F. हेलो Yes, yes sir. or no? यहाँ से बड़ा F 7 है, माइनस F will become 2.5F. 3.5F is equal to 7, so F will become 2. Okay. अच्छा ये आंसर नहीं है. This is the friction required. What is the maximum value of friction? हेलो कितना 10 होगा? Newton. Can I say this F is less than F max ना? So it will be what sir? सही है ना? हेलो Yes, sir. ये आंसर एक्ट करेगा. अगर ये F max से ज्यादा होता तो ये ही एक्ट करता, तो आंसर ये होता. तो आपको समझ के आ रहेगा. दिस विल बी द आंसर. 2 न्यूटन. And it is accelerated pure rolling concept, so it will become this way. We come to question number 4. This is a very nice question. See, maximum questions will be based on APR only, accelerated pure rolling only. हम लोग देख लेंगे. A uniform circular disc of radius r is placed on a smooth horizontal surface with a plane horizontal and hinged at the circumference passing through O as shown in the figure. So it is hinged over here. An impulse of P is applied at perpendicular distance h from the center. The value of h so that impulse due to hinge is. So ठीक है. ये कुछ मिस्टेक है क्या यहाँ पर? इम्पल्स कितना दिया है? Is 0. हाँ इज 0. दैट ओनली आंसर है. ये 0 है भाई, मिसप्रिंट है.
मतलब हिंज के कारण यहाँ पर कोई फोर्स आना नहीं चाहिए। ओके अच्छा, यू नो दिस फॉर्मूला, आपने अगर ये सुना रहेगा तो इनिशियल मोमेंटम प्लस माइनस इम्पल्स फाइनल मोमेंटम। हेलो, ये पता है ना? Yes, sir. पता रहेगा, इनिशियल मोमेंटम प्लस माइनस जी एस फाइनल मोमेंटम, ठीक है। और दूसरा वाला कौन सा फॉर्मूला सुना है आप लोगों ने? इनिशियल एंगुलर मोमेंटम प्लस माइनस, Torque. नहीं, जे की जगह कौन आएगा? एंगुलर इम्पल्स, Integration. सुनो, एंगुलर इम्पल्स आएगा ना। हेलो, पता है ना ये? अच्छा, व्हाट इज एंगुलर इम्पल्स? व्हाट इज इम्पल्स? हम लोग थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं ना बच्चा। व्हाट इज इम्पल्स का फॉर्मूला? व्हाट इज एंगुलर इम्पल्स? यस और नो? Yes, sir. बट व्हाट इज टॉर्क रिटन एज? हेलो, RF sin theta. टॉर्क को लिख सकते हैं फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू dt, बट एफ डी टी क्या बन जाएगा? जे बन जाएगा ना। हेलो, सो जे आर दैट इज एंगुलर इम्पल्स इज जे इनटू आर परपेंडिकुलर। डू यू एग्री विथ मी? ये सब हो चुका है ना? हेलो, हेलो, Yes, sir. तो ये एक और ये हम लोगों को ये सब इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। फाइन विद इट। ओके चलो, ये वाला लगाता है, इनिशियल मोमेंटम प्लस माइनस इम्पल्स इज फाइनल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम तो जीरो था, ये इम्पल्स है मेरा बच्चा, ये मोमेंटम नहीं है, ये इम्पल्स है। व्हाट इज द इम्पल्स गिवन? पी ना। हेलो, हेलो, Yes, sir. एंड व्हाट इज द फाइनल मोमेंटम? देखो ना क्या होगा। कैन आई से दिस सेंटर ऑफ मास, ये मोमेंटम के कारण ये सेंटर ऑफ मास ऐसे जाएगा वीसीएम से। हेलो, गेटिंग इट? हेलो, यस और So नो? what is heat? हाँ नहीं, बट वी कॉम रहेगा ना, द सेंटर ऑफ मास इज सी दिस इज ओनली डीलिंग विद चेंज इन मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। हेलो, एंगुलर मोमेंटम इक्वेशन नहीं है ये। कैन आई से दिस पी, दिस जे इज प्रोड्यूसिंग व्हाट? एम इनटू Ecom. पी कॉम ना। हेलो, ये पता चल गया आपको? Yes, sir. तो लीनियर मोशन के लिए ना बेटा ये इक्वेशन जो है वो लीनियर डायनेमिक्स है ना। अब अगर मैं वही चीज एंगुलर मोशन के लिए लगाऊं तो क्या बोलेंगे आप? आप बोलो। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम प्लस माइनस जे आर, व्हाट इज जे आर? जे इनटू आर परपेंडिकुलर इज फाइनल एंगुलर मोमेंटम। सो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम जीरो था, प्लस जे, जे इज पी आर परपेंडिकुलर। व्हाट इज आर परपेंडिकुलर फ्रॉम द हिंज? एच प्लस H आर। plus R. हेलो, इज आई इनटू ओमेगा। से ओमेगा इधर है, यस और नो? हेलो, Yes, sir. पी इंटू आर प्लस एच इज आई। ये रिंग है, रिंग नहीं है, ये क्या है? डिस्क है क्या? हाँ, डिस्क का सेंटर पे होता है ट्री हाफ एम आर स्क्वायर, तो हिंज पे क्या होगा? हेलो, हेलो, होगा नहीं होगा? यस और नो? यस Yes, और? sir. अच्छा, बट व्हाट इज और यहाँ से कोई हिंज नहीं आ रहा है, यहाँ से कोई इम्पल्स नहीं आ रहा है बेटा। पी हिंज इज जीरो।
P hinge they are telling you that this is 0, तो हमको यही वाला इम्पल्स लेना है और कोई इम्पल्स नहीं है ना मौजूद. हेलो, Yes, sir. यहाँ से कोई थोड़ा हाई है मगर यार समझना तो है ही ना. आपको क्या मांगता है? द वैल्यू ऑफ h, द वैल्यू ऑफ h आई नीड. अच्छा, नाउ लिसन टू मी. p की जगह mv कॉम डाल सकता हूँ मैं? हेलो, Yes, sir. but can I say this vcom is nothing but r omega? अरे भाई बोलो. Yes, sir. तो h क्या हो जाएगा? हेलो, समझा क्या? हेलो, यू गेटिंग इट? हाँ भाई. Yes, sir. Hmm. So this is how you do it. So I still didn't understand how you wrote P is equal to M into VCOM. ये वाला. हेलो, So, but it's not going in linear motion. हाँ, but vcom is nothing but what? r omega ना. It is not going in linear motion, but this p is causing, this is linear momentum ना बेटा. हेलो, this is linear momentum and this will cause the center of mass to move linearly. हेलो, देखो एक्चुअली क्या हुआ है मालूम है? सपोज ये होता और मैं इधर सिर्फ पी लगाता, सपोज हिंज नहीं है. अब क्या लिखते हैं आप इक्वेशन? अब क्या लिखेंगे आप इक्वेशन बेटा? मतलब सपोज ये हिंज ना होता, हिंज नहीं होता, तो कैसे लिखता? P is equal to M VCOM. वीकॉम लिखता. करेक्ट है ना? ये क्लियर है? दिस इज Yes, sir. क्लियर. अच्छा, बिकॉज ऑफ दिस हिंज, what is this vcom becoming now? You are telling me that this, imagine this to be a rod, बराबर. हेलो, now this rod का center of mass will go in what motion? Circular motion. So how will you write this vcom as? R omega. वही चीज तो किया है मैंने. Okay, so got it. समझा ना? ओके, मैं दूसरा तरीका थोड़ा ढूंढ रहा हूँ इससे. आई थिंक सो. हेलो, डिड यू गेट इट? vcom. Yes, sir. ओके, तो ये चीज है. हाँ, फाइन. ठीक है. देखो मैं दूसरे मेथड से करूँ चलेगा? देखो ट्राई करते हैं. आ गया तो आ गया. मैं सोच रहा हूँ ये समझ गया सबको. हेलो, Yes, sir. Yes, sir. तो कोई समझ गया ना? मैं दूसरे मेथड से ट्राई करता हूँ, देखते हैं आता है तो. नहीं आएगा तो हम लोग को तो आता है दूसरा मेथड. क्या मैं लिख सकता हूँ दिस vcom इज r ओमेगा? एक्चुअली वी आर डूइंग द सेम थिंग. क्या मैं स्टार्टिंग से ही लिख सकता हूँ दिस vcm इज r ओमेगा? हेलो, हेलो, Yes, sir. vcm will become r omega ना, because that is hinged about that point. अच्छा, v का फॉर्मूला हमारा सबको j by m होता है, याद आ रहा है? Yes, This is angular impulse by I. What is j का value in the question? P. p ना.
व्हाट इज जे आर P into R plus H. और आई क्या रहेगा? 3/2 M R square. आई थिंक सो सम विल कम, आ जाएगा, सही है ना? हेलो, Yes, sir. ये चीज हमने हमारे उसमें किया था, याद है वो बिलियर्ड का सम किया था मैंने, बिलियर्ड वाले सम को, बिलियर्ड वाले बॉल को हम लोग मारते हैं ऊपर से, तो यही होता है। बट ये कंडीशन हमने उधर किसके लिए किया था, याद आ रहा है किसी को? रोलिंग का कंडीशन था ये। हेलो, याद है? बॉल वाज देयर एंड इट वाज प्लेस्ड ऑन अ रफ ग्राउंड एंड यहाँ से हम लोग क्यू बॉल से इसको हिट करते हैं, याद आ रहा है किसी को? एंड बिकॉज ऑफ द क्यू बॉल, ये सॉल्ड एग्जाम्पल में है यार। हेलो, डू यू रिमेम्बर? नो, ठीक है छोड़ दो ये। दिस इज देयर इन द सॉल्ड एग्जाम्पल ऑफ डीसी पांडे, सो ठीक है, ऐसे कर लेना। ओके, I'm coming to question number 5, which is very important. Question number 5, which is an important question. Just pay attention. एक मिनट, just wait. Yeah. I'm finding a question which is similar type because this question is important. हाँ, इस क्वेश्चन के लिए आप लोग है ना रेफर करेंगे पेज नंबर 178 पे, एग्जाम्पल नंबर 24। ये एक्चुअली इतना छोटा सी क्वेश्चन है बट इसके पीछे बहुत सारे कॉन्सेप्ट छुपे हुए हैं, हम लोग देखते हैं क्या होता है। देखो क्या होगा, a rod is supported horizontally by means of a two string. If one of the string is cut, suppose इसको हम लोग काट देते हैं, so the tension on the other string at the same instant will become how much? Now pay attention to me. Can I say initially 2T was balancing mg? So initial tension कितना था एक स्ट्रिंग में? कितना था? हेलो, mg/2. mg/2 बराबर क्या? अब क्या हुआ? आफ्टर कटिंग फाइनली ये स्ट्रिंग पे ये रॉड घूमना चालू करेगा। ये तो कट गया है यहाँ से, ये mg है एंड दे आर आस्किंग यू एट द सेम इंस्टेंट, मतलब टाइम जीरो पर ही, जब कट किया तभी की बात कर रहे हैं, टाइम जीरो पर ही बात कर रहे हैं। कोई बता सकता है ये जो सेंटर ऑफ मास है इसके पास कितने एक्सेलरेशन होंगे? कैन आई से देयर विल बी टू एक्सेलरेशन बिकॉज दिस सेंटर ऑफ मास इज नाउ गोना गो इन व्हिच मोशन बेटा? Circular. हेलो, सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन के बाद दो एक्सेलरेशन होते हैं, एक हम लोग बात करते हैं, एक होता है सेंट्रीपिटल होगा एंड एक होगा टेंजेंशियल। हेलो, डू यू एग्री? एंड सेंट्रीपिटल का फॉर्मूला क्या है? बट ओमेगा इज जीरो एट दिस इंस्टेंट ना। हेलो 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 हेलो, यस और नो? Yes, sir. अच्छा, सो कैन आई से टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एट दिस इंस्टेंट विल बिकम r इनटू अल्फा, एंड अल्फा को लिख सकते हैं बेटा टाउ बाय आई। हु इज प्रोवाइडिंग द टॉर्क? mg. And moment of inertia will be ml square by 3. Do you agree with me? भाई भाई बोलो। Yes, ये sir. हो जाएगा 3/4g। ये सब आ चुका है पहले जेई एडवांस के अंदर, 3/4g ये भी मिल गया। अच्छा, कैन आई अप्लाई एफ नेट से? कैन आई से दिस टेंशन विल बिकम टी फाइनल नाउ? कैन आई से इफ आई से एफ नेट इज गोना बिकम ma, बट ए टी होगा ना बिकॉज ए आर तो जीरो है, सो नीचे है mg माइनस टी फाइनल
इज इक्वल टू m इंटू AT इज 3/4g। सो T फाइनल क्या हो गया? हेलो हेलो। तो आप देख सकते हैं T इनिशियल mg/2 था, अब T फाइनल हो गया g/4। तो कैन आई से इट विल डिक्रीज? हेलो 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 यार, पेज नंबर 178, क्वेश्चन नंबर 24, सॉल्व एग्जाम्पल। सबको समझ आया? हेलो, क्या हाँ ना बोलो, क्लियर है? T Yes, फाइनल will become mg/4 ना, g/4 mg/4 mg/4, सॉरी mg/4, कोई मिस्टेक है, ठीक है, फाइन। दिस इज हाउ यू डू इट। क्वेश्चन को याद रखना कि जब भी एक रस्सी को काटेंगे तो टेंशन जो है वो mg/2 का mg/4 हो जाएगा। फाइन। क्वेश्चन नंबर 7 पर आता है। क्वेश्चन नंबर 7, listen to me, good question. A uniform cylinder of mass m and radius r is released on rest on a rough inclined surface of inclination theta with the horizontal as shown in the figure. As the cylinder rolls down the inclined surface, the maximum elongation on the spring. Maximum elongation का मतलब क्या? जब पूरा उसका काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाता है? 0 ना। हेलो yes sir. भाई, स्टॉप टू स्टॉप कंडीशन है ना। हेलो, initially also it is at rest and finally when he comes here it should also be at क्या भाई? Yes, rest। तो ये हम लोग बोलेंगे दिस इज x मैक्सिमम। बोलो भाई, ठीक है। कैन आई से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी। चलो बोलो, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना है? 0। वर्क डन कौन कौन कर रहा है? वर्क gravity डन and spring. ग्रेविटी, हाँ ग्रेविटी एंड स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का वर्क डन कितना है? Half kx. बराबर क्या? हेलो, बिकॉज स्प्रिंग फोर्स उधर लगेगा, डिस्प्लेसमेंट नीचे होगा। यस और नो, यस और नो, यस और नो। हेलो So हेलो। और यहाँ पर नीचे कौन लेके जाएगा इसको? तो कहना इसे ग्रेविटी कितना काम करेगा? फाइनली इट इज 0। यस और नो? अरे भाई, yes, क्या चाहिए आपको? एक्स मैक्सिमम मांगता है। एक्स मैक्सिमम क्या रहेगा? दिस इज द आंसर। समझा ना? हेलो, आई फील रोटेशनल मोशन इज कंपैरेटिवली इजियर देन सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में आपको है ना थोड़ा प्रैक्टिस हैंड्स ऑन चाहिए, प्रैक्टिस बराबर से करना पड़ेगा। 2-3 बार आपको सम्स का प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी जाके वो हैंग आएगा। रोटेशनल मोशन कंपैरेटिवली इजी है। ग्रेविटेशन में तो कोई दम नहीं है। ग्रेविटेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन एकदम इजी है। इफ यू वांट हैंड्स ऑन सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, आपको एक बार नहीं चलेगा, वो उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा 2 से 3 टाइम। ओके, हेलो, व्हाट एम आई सेइंग? समझ में yes आ sir. रहा है ना? ये एक टाइम में आ जाएगा। ये चैप्टर ऐसे है, रोटेशन 1-2 टाइम करेंगे या थोड़ा सी देख लेंगे तो आ जाएगा। ग्रेविटेशन एसएचएम भी वैसे ही है। ओके, ध्यान रखो इसका। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 पर आता है। अगेन गुड क्वेश्चन। Every chapter is not the same. A uniform rod of mass m and length and rotates in a horizontal plane. So there is a rod of mass m and length l rotates in a horizontal plane. So here top view with angular velocity omega about a vertical axis, passing through one end. The tension on the rod at a distance x from the axis. Okay. अच्छा, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया है कि टेंशन किधर मैक्सिमम है?
Can anyone tell me where is the tension maximum, A or B? Hello. Where is the tension maximum, at A or B? Can anyone tell me? B. B पर टेंशन मैक्सिमम है? नहीं, टेंशन इज मैक्सिमम एट ए. देखो देखो कैसे, मैं आपको एक बात बताता हूँ, शायद सम आपने सर्कुलर मोशन में पढ़ा रहेगा. ओके, सपोज ये एम है और ये भी एम है. इधर का टेंशन में पकड़ता हूँ T1 एंड इधर का टेंशन में पकड़ता हूँ T2. आर यू अंडरस्टैंडिंग? हेलो 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 हेलो. ये रस्सी ऐसे घूम रही है. हेलो, इसके अक्रॉस, यस और नो? Yes, sir. पहले हम लोग उसकी बात करते हैं, बाद में मैं आपको बताऊंगा, तो ये फैक्ट आपको याद हो जाएगा. अच्छा, कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ओवर हियर? सपोज ये एल है और ये भी एल है. चलो बोलो, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एट बी कितना रहेगा? हेलो, डू यू अग्री? डू यू अग्री? Yes, sir. एंड व्हाट बी द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन ए? यस और नो? T1 का वैल्यू कितना रहेगा? m ओमेगा स्क्वायर 2l. T2 का वैल्यू कितना रहेगा? T1 प्लस m ओमेगा स्क्वायर l. ये कर चुका है शायद हम लोग. हेलो, हैव वी डन दिस बिफोर? हेलो 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 हेलो. I don't think. ओके, तो फिर से मैं सिखा देता हूँ, 1 मिनट. थोड़ा रुक जाओ. देखो इधर, ये सम शुरू करने से पहले ये सम बेटा थोड़ा सी आप लोग कोऑपरेट करेंगे ना कि हुआ है नहीं हुआ है, सो आई विल कम टू नो मन. ओके, देखो ये क्या हो रहा है. सपोज ये मास m है एंड ये मास m है, और ये ऐसे घूम रहा है विद ओमेगा. ये l है और ये l है, ये m और m है. कैन आई से इसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा m ओमेगा स्क्वायर 2l. इसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना लगेगा बोलो यार? हेलो, ये T1 है और ये कौन है? T2. T2. अच्छा, T1 का वैल्यू कितना रहेगा? 2m omega square. सही है ना? अच्छा, T2 का वैल्यू कितना रहेगा? कैन आई से विल बी T1 प्लस द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ना, सो विल बी T2 इक्वल टू, हेलो 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 हेलो. Yes, sir. समझा? इसका मतलब सेंटर की तरफ आप जाएंगे ना, इस तरफ आप जाएंगे ना, तो टेंशन क्या होगा? क्या होगा? बढ़ता जाएगा. हेलो, कैन आई से मैक्सिमम टेंशन इज ओवर योर, एंड यहां पर कितना टेंशन रहेगा? कितना रहेगा? Minimum. मिनिमम टेंशन. गेटिंग इट? तो एज वी ट्रेवल अलोंग द लेंथ ऑफ द रॉड, द टेंशन कीप्स ऑन, क्या भाई? हेलो, डिक्रीजिंग. Increase. ये फैक्ट है, ये याद करना पड़ेगा, इसके बिना काम होने वाला नहीं है आपका. यस और नो? तो ये थोड़ा ध्यान में रखना. अब मैं आपको बताता हूँ क्या हो रहा है. देखो एक रॉड है, एंड इट इज रोटेटिंग. क्लियर? कैन आई से I'll go to x and I'll take an element. ओके, इस पार्ट पे टेंशन कितना है? T प्लस डी टी. तो इस पार्ट पे टेंशन कितना रहेगा? T ना. कम हो रहा है ना? हेलो 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 हेलो. Yes. समझा ना? अंदर की तरफ टेंशन ज्यादा होता है ना. एंड दिस इज dx वैल्यू, एंड मास इसका है dm, will be mass per unit length into its own length. ठीक है? You getting it what's happening, right or not? हेलो,
हेलो, यस और नो, Yes, sir. क्लियर है ना? हाँ ठीक है, चलो इधर आ जाओ। नाउ कैन आई से द टेंशन, अब मेरी बात सुना, dt का वैल्यू कितना रहेगा? विल बिकम dm ओमेगा स्क्वायर dx dm ओमेगा स्क्वायर dx। टेंशन, या तो एक काम करो, ऐसे मत करो, इससे बेटर मेथड मैं आपको दे देता हूँ। हाँ हाँ, कोई बता सकता है इस टुकड़े पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना लगेगा? इस टुकड़े के ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स M कितना लगेगा? omega square x. हाँ, dm ओमेगा स्क्वायर एक्स ना। हेलो हेलो, एक्स इज द लेंथ, हाँ पूरा, dx मत लिखना। हेलो, आर यू गेटिंग इट? Yes, sir. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज m ओमेगा स्क्वायर r ना, तो ये dx की जगह x आ जाएगा। हाँ, नाउ ये तो मिल गया। अच्छा ठीक है, कैन आई से यहां पर टेंशन लग रहा है t प्लस डी टी, यहां पर टेंशन है t, so how much is the difference in the tension? dt. dt बराबर है ना, ये देखो ना, ऐसे लिखेंगे ना हम लोग, t प्लस डी टी अंदर इज t प्लस dm ओमेगा स्क्वायर एक्स बाहर। हेलो हेलो, कुछ समझ में आ रहा है? Yes, sir. ये टी तो वैसे ही उड़ जाएगा, तो dt का वैल्यू कितना आया जो मैंने लिखा? थोड़ा ध्यान से, यस और नो? हेलो 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 हेलो, यस और नो? ये समझा आपको? आर यू गेटिंग इट? Yes, sir. अब हम लोग dt की जगह वैल्यू डालते हैं, dm की जगह क्या डालेंगे? m बाई एल इंटू डी एक्स, ये वाला ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये dt मिला। दिस इज डिफरेंशियल टेंशन ड्यू टू दैट एलिमेंट, बट कैन आई से लाइक दीज एलिमेंट्स आर रेंजिंग फ्रॉम वेयर टू वेयर? ये भी एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है, यस और नो? ये तो एक छोटा सी एलिमेंट है ना। हेलो, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स आर रेंजिंग फ्रॉम वेयर टू वेयर, कहां से 0 कहां to तक? L. 0 to L, okay, x is ranging from 0 to L, बट यहां पर है ना एक प्रॉब्लम हो गया है। सब लोग मेरी बात सुनना, अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं यहाँ पर इंटीग्रेट तो कर लेता हूँ। देखो एक लफड़ा है, अगर मैं यहाँ पर 0 टू x लिखता हूँ, बिकॉज मुझे x पे चाहिए ना टेंशन, दो यस और नो? हेलो, So it should be x to L. एक मिनट, ये रॉन्ग प्रूफ कर रहा हूँ बेटा मैं, एक मिनट रुक जाओ गौतम। Sorry, sir. हाँ, ये जीरो का सामने का टेंशन मालूम है क्या आपको? इधर टेंशन मालूम है क्या आपको कितना टेंशन है? डू यू नो द टेंशन ओवर हियर? यू डोंट नो? हेलो 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 हेलो, यस और नो? Yes, sir. भाई उधर जो जीरो पे आप ले रहे हो, ये आपने जीरो पकड़ा और ये आपने एल पकड़ा, सही है ना? तो इधर का टेंशन आपको मालूम नहीं है, इधर का टेंशन आपको पता नहीं है। सिंस आपको ये टेंशन आपको पता नहीं है, आप ये जीरो कोऑर्डिनेट नहीं ले सकते हो। आई होप यू आर गेटिंग इट, व्हाट एम आई स्पीकिंग? हेलो, Yes, sir. ओके। एक बात यहां पर मैं करना चाहूंगा कि कैन आई से एल पर टेंशन कितना है? जीरो है ना। यहाँ पर टेंशन कितना है? इस पॉइंट पे टेंशन कितना है? जीरो है ना। ये पॉइंट पे टेंशन नहीं होता है ना, जीरो टेंशन है ना, बिकॉज इसके आगे कोई पार्टी नहीं है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा ही नहीं। और एक्स पर टेंशन कितना है? हेलो,
Are you getting my point? Yes, sir. Are you understanding what's happening? What am I telling? L पर टेंशन 0 है, X पर टेंशन T है, बट यहाँ पर और एक मिस्टेक कर लिया मैंने. मिस्टेक नहीं किया, जानबूझ करके मैंने नहीं लिखा है. क्या नहीं लिखा है? Do you know what it is? Mathematically something is wrong. Mathematically physics सब बराबर है. Mathematically something should be added over here. What has to be added? Okay. जैसे हम x के डायरेक्शन में चल रहे हैं वैसे टेंशन बढ़ रहा है कि घट रहा है? हेलो, टेंशन शुड डिक्रीज, यस और नो? हेलो हेलो, Yes, sir. you are understanding what am I telling you? You are getting it what's happening? हेलो, ये टेंशन कम हो रहा है ना, एक्स के डायरेक्शन में चल रहे तो टेंशन कम हो रहा है. अच्छा, इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा? माइनस टी एम बाई एल ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2. एक्स स्क्वायर बाई 2 सही है ना? ये क्या लिखा जाएगा बोलो जरा. हाँ, क्या लिखा जाएगा बेटा? एक्स स्क्वायर बाई 2 लिखा जाएगा ना, एल टू एक्स. यस और नो? Yes, sir. ये कैसे लिखा जाएगा? So this will be written as T will become minus m by L omega square by 2 x square minus L square. T will become m by L omega square by 2 L square minus x square by L आ गया. तो ये कितना लिखा जाएगा? done something wrong हो गया क्या कुछ? You have to Yes sir. m ओमेगा स्क्वायर. अच्छा, L बाहर निकाल दिया. अच्छा हाँ सॉरी, L बाहर निकाल दे. m ओमेगा स्क्वायर बाई 2 कितना हो जाएगा? L बाहर निकाल दिया तो L माइनस एक्स स्क्वायर बाई L ना. हेलो, इज करेक्ट? Yes, sir. L माइनस एक्स स्क्वायर बाई L ये आना चाहिए. L माइनस एक्स स्क्वायर बाई L. यस. So mathematically, as you go away in the direction of x, देखो x बढ़ रहा है तो मैंने कहा t घट रहा है. So obviously dt by dx should be negative only ना. dt by dx should be negative only ना. Yes or no? हेलो, इसलिए मैंने माइनस साइन ऐड किया. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं. क्वेश्चन नंबर 10. A ring and of radius r rolls on a horizontal surface with constant acceleration a, mass m. If omega is the instantaneous angular velocity of the ring, the net acceleration of the point of the ring with the ground. यहाँ पर can I say roll कर रहा है तो ये ACM रहेगा, ये R अल्फा रहेगा. And can I say there will be centripetal acceleration which is directed will become omega square r. Did you understand? हेलो, ये वो जो पॉइंट है वो सर्कल में भी जा रहा है. Can I say ये जो पॉइंट है उसके पास A तो रहेगा ही, R अल्फा रहेगा, and it will have ACM which is ACP which is omega square r, where omega is omega instantaneous. But I know that ACM is R alpha, so therefore this and this will cancel. So the net acceleration present over here will be omega square r. Hello, hello, you getting it? Say yes Yes, or sir. no? Clear है ना? It is directed towards the center.
ध्यान रखना ये चीजों का। अच्छा, अगर आपको ये पॉइंट पे एक्सेलरेशन मांगेगा तो कैसे निकालेंगे आप लोग, कोई बता सकता है? ये ए है, ये आर अल्फा है, एंड दिस one more acceleration will be there which is directed towards the hello center will become ACP na, yes or no? Yes, sir. So please remember. Question number 12. So could you go on the previous question for Yeah, 1 yeah, second? yeah, 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 yeah. एक minute, huh? Just wait. Yeah. We come to question number 12. A figure shows a spool placed at rest on a horizontal rough surface. A tightly wound string on the inner cylinder is pulled horizontally with a force F. Identify the correct alternative statement. एकदम easy है. देखो ये इधर से खींच रहे हैं, ये छोटा आ रहा है, कह रहे फ्रिक्शन कहाँ आएगा? एकदम आसान है, ये एफ है, ये ए को कैसे बनाएगा, राइट की तरफ के लेफ्ट की तरफ? ये जो एफ है, ये जो बड़ा एफ है, वो ए को कैसे बनाएगा? Right. हेलो, ये एफ के कारण जो ए बनने वाला है वो ऐसे बनेगा, यस और नो? अच्छा, हमको अल्फा कैसे चाहिए रोलिंग कराना है? तो अगर आपको रोलिंग कराना है तो एफ अल्फा कैसे मांगता है? क्लॉकवाइज क्या एंटी क्लॉकवाइज? Clockwise. चलो ऐसे चाहिए ना आपको, ऐसे चाहिए ना आपको तो। अच्छा, क्या ये एफ जो है वो अल्फा ऐसे बना रहा है? ये तो ऐसे बना रहा है ना बेटा। हेलो Yes, sir. हेलो हेलो हेलो, तो ये एफ is not generating alpha which can produce pure rolling. Can anyone tell me where will friction act? In which direction will friction act to produce that alpha? हेलो To the left. यार बोलो ना, इधर एक्ट करेगा ना, ताकि ये अल्फा आ जाए और ये अल्फा डोमिनेट कर जाए। हेलो, कैसा नो? देखो, अगर ये बना रहा है अल्फा 1 तो ये बनाएगा अल्फा 2, वे अल्फा 2 विल बी ग्रेटर देन अल्फा 1, और कैन आई से अल्फा 2 माइनस 1 विल बी अल्फा नेट? हेलो, कुछ समझ आ रहा है? हेलो, यस Yes, और नो? sir. एंड कैन आई से बड़ो एफ माइनस छोटो एफ शुड बी एफ नेट? बिकॉज आगे ही जाना है ना उसको। तो बड़ा कौन है? बड़ा एफ बड़ा है कि छोटा एफ बड़ा है? हु इज बिगर? हु इज बिगर बाबा, हु इज बिगर? Big F. Big F is bigger because A should be in the forward direction and chota f should be producing a more torque because that alpha should be bigger. So what is the answer, man? A. A is the answer ना। फिर से एक बार देख लो, बहुत अच्छी चीज है ये। देखो, ये जो एल्फ है ये ए ऐसे बनेगा, मगर ये एफ के कारण अल्फा ऐसे बनने वाला है, विच इज नॉट सफिशिएंट। हमको अल्फा ऐसे मांगता है, तो ये एफ रहेगा जो अल्फा ऐसे बनाएगा।
बट बॉडी का ए तो इस तरफ है ना, राइट की तरफ है, दैट मीन्स बड़ो एफ शुड बी ग्रेटर देन कैपिटल एफ. I hope you all are doing your analysis properly. Hello. Question number 13. A cylinder ring, a circular ring of mass m and radius r, rest on a flat, smooth surface as shown in the figure. A particle of mass m moving at the velocity v collides inelastically. Inelastically मतलब क्या होगा? चिपक जाएगा, right? Hello. With the ring. The angular velocity of the ring with the system rotates with the system rotates. मजा आएगा. System rotates after the particle. System rotates. अच्छा, हिंज विंज किधर किया नहीं है, ठीक है. अब मेरी बात सुनेंगे सब लोग. पे अटेंशन. देखो क्या मैं कह सकता हूँ, ध्यान देना अभी सब लोग इधर मेरी बात सुनो. ये कैन आई से दिस रिंग का मास इज कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर. हेलो 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 हेलो, यस और नो? Yes, sir. ये मास आया, इधर आके चिपक गया. कैन आई से जब ये चिपकेगा तो रिंग कौन सा मोशन परफॉर्म करेगा? रिंग का मोशन क्या रहेगा? कम ऑन एनीवन. ये आया ऐसे, टक 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 करके इधर आके चिपक गया. जैसे इसने एक झटका मारा, इसको एक हिट किया, उसने इम्पल्स दिया और चिपक गया आके. व्हाट विल हैपन टू द रिंग? कम ऑन. Will Rotational plus translational motion. हाँ, रोटेशनल मूव, बिकॉज इट इज फ्री टू मूव ना. हिंज थोड़ी है पहले की तरह. हेलो, याद है पुराने समय हिंज था, याद आ रहा है? हेलो 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 हेलो. कैन आई से it will provide, Gautam has told me, it will provide T motion also and R motion also. About which point? About क्या भाई? हेलो हेलो हेलो, ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. अबाउट क्या? New center of mass. न्यू सेंटर ऑफ मास. क्योंकि चिपक गया तो सेंटर ऑफ मास बदल गया ना भाई. हेलो, कैन आई से इनिशियली सेंटर ऑफ मास इधर था, इधर ही था ना सिस्टम का. हेलो, इनिशियली कैन आई से रिंग का सेंटर ऑफ मास बीचों बीच था. अब जैसे ही आके चिपक गया इधर, सेंटर ऑफ मास किधर हो जाएगा? किधर हो जाएगा भाई? It ऐसे move आगे R चिपक by गया. 2. ये आर है ना पूरा डिस्टेंस. कैन आई से दिस विल बी C2 which will be बीचों बीच between them. Hello, are you getting it or not? Yes, sir. हेलो, या तो सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला लगाओ ना, m2r upon m1 plus m2. डू यू नो और नॉट? ओके. हेलो, व्हेन यू डोंट नो आई गेट टेंशन मैन. समझ में आ रहा है क्या आप लोग को? तो Yes, कैन sir. आई से अबाउट दिस सेंटर ऑफ मास it will have VCM also and it will rotate also. It will rotate in, sorry, it will rotate in this direction. Sorry. It will rotate in this direction. Yes or no? हेलो बोलो बोलो, क्योंकि झटका तो ऐसे लग रहा है ना. Yes or no? Yes, sir. हाँ, अब मजा आएगा सब लोगों को. देखो मेरी बात सुनो, मैं जानबूझ करके दो इक्वेशन लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए. जानबूझ करके मैं दो इक्वेशन लिख रहा हूँ. कैन आई से नेट एक्सटर्नल फोर्स इज 0? भाई जो भी चीज हो रही है दोनों के बीच में हो रही है ना. हेलो, स्मूथ ग्राउंड है, कोई टेंशन नहीं है. कैन आई से इनिशियल मोमेंटम है, फाइनल मोमेंटम. व्हाट इज इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम? mv. MV. What is final momentum of the system? 2MV. 2mv com. हेलो,
या वी कॉम क्या हो जाएगा? वी कॉम V/2. ये पूछा नहीं है, ऐसे टाइम पास कर रहा हूं मैं. दिस इज नॉट आस्क्ड, दिस इज केस 1. हेलो, ये पूछा नहीं है, क्लियरली पूछा नहीं है इसको. केस 2, कैन आई से नेट एक्सटर्नल टॉर्क इज आल्सो 0. सो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज फाइनल एंगुलर मोमेंटम अबाउट न्यू सेंटर ऑफ मास. देखो ये पॉइंट है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आप किधर भी एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हो, बट ज्यादातर हर बुक्स में कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज अबाउट अ न्यू सेंटर ऑफ मास. क्यों न्यू सेंटर ऑफ मास के ऊपर कंजर्वेशन हो रहा है मैं आपको बता दूं, थोड़ी देर में आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा. कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम? MVR ना, MVR अबाउट C2. हाँ, अबाउट पॉइंट C2. बोलो MV इंटू R/2. R/2. अरे भाई MV इंटू R/2 ना, ये सेंटर ऑफ मास है ना न्यू, तो ये MV इंटू R परपेंडिकुलर. सही है क्या? हेलो 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 हेलो, यस और नो? अच्छा ठीक है. फाइनल एंगुलर मोमेंटम में क्या हो रहा है? फाइनल एंगुलर मोमेंटम में दो टुकड़े हैं. इट इज हैविंग I ओमेगा, दिस इज I अबाउट C2 इंटू ओमेगा प्लस 2m V/2. Vcom इंटू 0. बिकॉज वही पॉइंट पे कंजर्व हो रहा है ना, वही पॉइंट पे चाहिए, तो Vcom तो वही पॉइंट से पास हो रहा है. यस और नो? हेलो यार, मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है क्या? हेलो, MVR होता है ना फॉर्मूला, बट एट दैट पॉइंट वी आर कंजर्विंग एंगुलर मोमेंटम. सो अबाउट C2 Vcom का डिस्टेंस कितना है? हेलो प्लीज 0. बोलो. 0 है. दैट मीन्स दिस टर्म इज एलिमिनेटेड. हेलो, मैं क्या बोल रहा हूँ? हेलो, क्या बोल रहा हूँ मैं, समझ में आ रहा है? इसलिए हम लोग कंजर्व करते हैं अबाउट न्यू सेंटर ऑफ मास. भाई डिड यू अंडरस्टैंड? डिड यू अंडरस्टैंड? एक टर्म Yes, sir. आसानी से निकल जाएगा ना यार. कोई भी दूसरी पॉइंट पे आप कंजर्व करने जाएंगे तो वी कॉम का परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिखाई देगा वहां से. यस और नो? हेलो. Yes, sir. हाँ हाँ, ये चीज का ध्यान में रखना. अच्छा, कैन यू टेल मी, दिस इज MV इंटू R/2, व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट न्यू पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ मास? कितना रहेगा? इट विल बी I रिंग अबाउट दैट पॉइंट प्लस I पार्टिकल ना, इंटू ओमेगा. सो दिस विल बी MV इंटू R/2. I रिंग कितना है अबाउट दैट न्यू सेंटर ऑफ मास? IC कितना है इसका? MR स्क्वायर है, प्लस कैन आई से इट इज मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर. और पार्टिकल का कितना रहेगा? मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर. डू यू अग्री विथ मी? Yes, sir. यार इसको बोलते हैं एडवांस का सम. यस और नो? क्लियर है ना? Yes, sir. समझ में आ रहा है ना? ओके, सो दिस इज MV इंटू R/2 is MR square plus MR square by 4 plus MR square by 4 is MR square by 2 into ओमेगा. सो ओमेगा का वैल्यू यहां से आपको दिखाई देगा, दैट विल बिकम V/2, तो 3 आ जाएगा. 3R. यस और नो? हेलो, समझा क्या? हेलो. Yes, sir. कंजर्व, इसका कुछ काम नहीं था केस 1 का. केस 1 ऐसे ही दिया है बिकॉज आगे जाके इस्तेमाल होने वाला है. वी आर ओनली नीडिंग केस 2 ओवर हियर. वील कंजर्व मोमेंटम अबाउट न्यू सेंटर ऑफ मास. कंजर्व एंगुलर मोमेंटम अबाउट न्यू सेंटर ऑफ मास. कोई भी दूसरी पॉइंट पे आप कंजर्व कर सकते हो, बट उसमें वी कॉम इन टू दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस टर्म दिखाई देगा, तो आपको फिर वी कॉम यहां से उठा के डालना पड़ेगा. हेलो, आंसर उसमें भी आ जाएगा, बट क्यों कॉम्प्लिकेट करना है? ओके चलो 15 सम पे आते हैं. 25 सम तो करना ही पड़ेगा ना नेक्स्ट टाइम. फिर एक एक हफ्ते का गैप दे रहा हूँ. रोज का अगर आप लोग 3-4 सम भी करते हो ना, इज मोर देन एनफ यार. इतना कुछ हार्ड नहीं है इसको. जेई मेन तो क्रैक करना एकदम आसान है. एडवांस में थोड़ा सी मेहनत चाहिए आपको, एंड कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपको चाहिए. A thin uniform rod of mass and length L is free to rotate about the upper end.
तो ऐसे इधर मैंने हिंज कर दिया. When it is at rest, it receives an impulse J at the lowermost point. अरे मजा आएगा, ये वही समय J लगा दिया मैंने. Immediately after impact क्या होगा? हाँ तो easy तो है. Does anyone know the formula for omega? J into R perpendicular by. हेलो 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 हेलो. ओमेगा क्या रहेगा? चलो बोलो. ओमेगा क्या है? J into अबाउट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है ना. बोलो यार. यस और नो? Yes, sir. 3J by ml. The angular velocity of the rod is 3J by ml, but खत्म नहीं हुआ है. The angular momentum of the rod is J into L. What is the angular momentum? I omega ना. हेलो. यस और नो? Yes, sir. और I कितना है? ML और sir. ओमेगा यहाँ से ले लो. ओमेगा यहाँ से ले लो. 3J by ml. कितना आता है? J into R परपेंडिकुलर वही होता है ना. ये भी JL हो गया, मतलब दो सही है ना. तीसरा वाला भी तो सही रहेगा. ऑल ऑफ दीज है. काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगा? फॉर्मूला क्या है काइनेटिक एनर्जी का? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर ना. हेलो. अरे भाई रोटेट कर रहे हैं ना यार ये. L square by 2i. L स्क्वायर बाय 2i से भी कर सकते हैं. काइनेटिक एनर्जी रोटेशन इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर और L स्क्वायर बाय 2i. किससे भी करो थर्ड आंसर आएगा and you will get the resultant answer. I hope you all are understanding what's happening. Hello. Yes or no? Clear हो गया. Yes, sir. Fine. Question number 17 पर आते हैं. It is a very nice question. 17 वाला. A uniform rod of length L and mass M is free to rotate about a frictionless pivot at one end as shown in the figure. ठीक है. A rod is at rest, the horizontal position, and a coin of mass M is placed at the free end. यहाँ पर एक coin डाल दिया मैंने. एक coin रख दिया. The reaction on the coin immediately after the rod starts falling. तो rod को मैंने छोड़ दिया. तो rod ऐसे था. Can I say ये hinge है? Can I say this is center of mass where rod का mass will be mg? And coin का भी mass कितना m ही है ना. तो mg. yes or no? हेलो हेलो भाई बोलो. Yes, sir. And ये अल्फा मारेगा बिकॉज ओमेगा नहीं रहेगा. बिकॉज फोर्स एक्ट कर रहा है ना. टॉर्क एक्ट कर रहा है. तो टॉर्क विल रिजल्ट इन व्हाट? अल्फा ना. हेलो हेलो हेलो. कैन आई से अल्फा विल बी टाउ बाय आई. टॉर्क कितना है? चलो बोलो फटाफट फटाफट टॉर्क के बारे में बोलो. MgL by 2 plus MgL. आई क्या है? ML square by 3. तो यहाँ से आपको अल्फा का वैल्यू मिल जाएगा. कितना आता है देखो ना. 3/2 mgl इंटू ml स्क्वायर बाई 3. कितना होता है ये? 9/2 दैट इज 4.5. भाई कितना होता है? gl ना. हेलो. यस और नो? यस और नो? Yes, sir. अच्छा. कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द a कॉम? व्हाट इज a सेंटर ऑफ मास? एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या रहेगा? r अल्फा. अरे भाई. यस और नो? Yes, sir. एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का रहेगा. सेंटर ऑफ मास इन दोनों के बीच में नहीं रहेगा. बीच में किधर रहेगा? ठीक है ना. एक काम करते हैं. एक कॉइन निकाल दो. इसको छोड़ दो. सेंटर ऑफ मास को जाने दो. इसको भी जाने दो. मैं कैन आई से ये जो चीज है ये भी सर्कल में जा रहा है. कैन आई से ही इज एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड. व्हाट विल बी ए कॉइन का फॉर्मूला? आर अल्फा. टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है ना ये.
हेलो, अल्फा क्या रहेगा? डू यू गेटिंग? हेलो 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 हेलो, यस और नो? ये कॉइन है, कॉम नहीं है। हेलो, अरे भाई बोलो। हेलो, डू Yes, यू? sir. I didn't हाँ, ये understand. मैं सिर्फ, बेटा ये जो चीज जा रही है ना, ये जो कॉइन जा रहा है, वो कौन से मोशन में जा रहा है? नीचे, Circular. नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ना? हेलो, Yes, sir. that means it will have two accelerations. What are the two accelerations? ACP, And ET. but ACP तो zero है because at the moment it is left they are asking you know. देखो ना यहाँ पे immediately after the rod starts, बराबर है क्या? हेलो, Yes, sir. तो एक कॉइन कितना रहेगा? एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ द कॉइन कितना है? अरे भैया, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ द कॉइन कितना है? आर अल्फा है ना? आर यू गेटिंग इट? Yes, sir. So, but how can the coin fall faster than gravity? हाँ वही आंसर रॉन्ग आएगा, पर रुको तो रुको तो रुको तो, आंसर जीरो मौजूद है अंदर। हेलो गौतम, हेलो, No, sir, that I got it will be zero only. हाँ, But a coin won't be 4.5 G, right? It will be G दैट only. मीन्स, हाँ नो, दैट मीन्स इट इज नॉट इन कॉन्टैक्ट विद द कॉइन ओनली, रॉड ओनली। वो हवा में तैर रहा है, रॉड फटक से गिर गया नीचे। हेलो हेलो, इसका मतलब ये हो रहा है कि रॉड का गिरने का जो अल्फा है वो ज्यादा है, रॉड ने कॉइन को छोड़ दिया है। गेटिंग इट? सी दे आर आस्किंग यू द रिएक्शन ऑन द कॉइन। सो हम लोग ये कॉइन कॉइन का जो है ना फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ये एन है, ये एम जी है, और ये एम ए है। तो कहना इसे एम जी माइनस एन इज इक्वल एम इन टू ए। तो एम जी माइनस एन इज एम इन टू ए कॉइन। व्हाट इज ए कॉइन? ये हो गया। तो एन का वैल्यू कितना आया? Negative. दैट मीन्स व्हाट इज नॉट पॉसिबल ओनली ना। हेलो, So, so the actual A coin won't be 4.5 G, right? नो इट इज नॉट देयर ना, वही तो मैं बोल रहा हूँ। Okay, sir. एन का Okay. वैल्यू नेगेटिव आना था, अनरियलिस्टिक वैल्यू आना था, तो मैथमेटिकली कुछ तो प्रूव करना पड़ेगा ना। हेलो, Yes, याद sir. है Yes, sir. टाइम Got it. नेगेटिव आता है आपको, उसमें टाइम कैलकुलेट करते हैं, तो मैथमेटिकली कुछ तो आंसर देगा ना आपको बेटा। Yes, sir. ओके, Got it. हाँ, प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल, थ्योरेटिकली कुछ तो बताना पड़ेगा ना उसके उसमें। ओके, फाइन, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18, listen what's given. A spool is pulled at an angle theta with a horizontal on a rough horizontal surface. The spool remains at rest. Spool remains at rest मतलब क्या? Net force is also zero, बराबर है क्या? हेलो, Yes. and net torque is also zero ना? अच्छा, कहना इसे अगर ये F लग रहा है, जो टेंजेंशियल फोर्स रहेगा खींचने वाला, वो F cos थीटा रहेगा। यस और नो? Yes, sir. और ये फ्रिक्शन पीछे आएगा, तो उसको F cos थीटा को बैलेंस करना है ना। कहना इसे अगर F net जीरो है, that means F cos theta is balancing F, and net torque अगर जीरो है,
इसका मतलब फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज फ्रिक्शन इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस अबाउट द सेंटर. हेलो 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 हेलो. यार ये तो सबको टाइम पास लगता रहेगा. यस और नो. यार बोलो, क्लियर है? ये तो इजी है ये. आपको पूछा थीटा का वैल्यू कितना है. So can I write this as f by छोटो f is बड़ो r by छोटो r? Can I remove cos theta from here? Cos theta from here is छोटो f by बड़ो f. So इसको क्या मैं लिख सकता हूँ? बड़ो r by छोटो r is 1 upon cos theta. हेलो हेलो, यस और नो. हेलो, क्या बोल रहा हूँ मैं? So, तो cos थीटा क्या हो जाएगा? अब ट्राइंगल बना लो. ये छोटो r और सॉरी ये छोटो r और ये बड़ो r. तो ये सामने वाला कितना रहेगा sin थीटा? under root r square minus r square. तो sin थीटा इज गोना बिकम बाय r. तो उसको ऐसे लिख सकता हूँ रूट ऑफ r स्क्वायर. हेलो हेलो. तो आंसर बी आ जाएगा ना. देखो ना. यस और नो. हेलो, Yes, sir. क्लियर है? ओके फाइन. सो आगे बढ़ते हैं. और 20 बनाता है. 20. A cylinder having radius 0.4 meter initially rotating with omega naught है 54 is placed on a rough inclined surface. So initially उसके पास omega naught है and the friction theta is 37 degree. Friction coefficient is this much mu. The time taken by the cylinder to start pure rolling. Okay. Okay. Pure rolling कब start होगा? Pure rolling का condition क्या है भाई? हाँ भाई. हेलो, यस और नो. Yes, अरे sir. भाई बोलो. प्योर रोलिंग का कंडीशन ये है ना दैट VCM शुड बिकम इक्वल टू R ओमेगा. VCM शुड बिकम R ओमेगा. बट V, ये V को क्या मैं लिख सकता हूँ? अब ध्यान से देखना. U प्लस AT और ओमेगा. ओमेगा नॉट इज ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी. अरे काइनेमेटिक इक्वेशन आई एम राइटिंग मैन. बोलो यस और Yes, नो. sir. ये मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में. हाउ मच इज U गिवन इन द क्वेश्चन? U कितना है? U U U U U U कुछ नहीं है ना. U 0 है ना. हेलो. Yes, sir. अच्छा अभी मजा आएगा, इधर ध्यान दो. एक्सेलरेशन कितना रहेगा? कैन आई से इसके ऊपर फ्रिक्शन ऊपर लगने वाला है. फ्रिक्शन इज लगेगा ही इतना फ्रिक्शन ऊपर. ओके. एंड अभी तो प्योर रोलिंग कर रहा नहीं है स्टार्ट में, तो फ्रिक्शन का पूरा वैल्यू लगेगा, मैक्सिमम वैल्यू लगने वाला है बिकॉज इट इज गोइंग डाउनवर्ड. हेलो, यस और नो. Yes, sir. भाई नीचे स्लाइड हो रहा है ना स्टार्ट में. तो प्योर रोलिंग तो आफ्टर टाइम टी कर रहा है ना. तो स्टार्टिंग में तो व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन? एम ड्रॉप करो और तो एक्सेलरेशन कितना रहेगा? G sin theta minus mu G cos theta. इनटू टी. ये बंद हो गया. यस और नो. Yes, sir. आर ओमेगा नॉट मालूम है. अल्फा. अल्फा कैसे आएगा? कैन आई से अल्फा ये डायरेक्शन में आएगा. अल्फा का वैल्यू क्या रहेगा? अरे भाई टाउ इनटू आई ना. टाउ अपॉन आई ना. यस और नो. Yes, sir. इनटू आर बाय आई. हाउ मच इज आई? कौन है ये? सिलेंडर है.
Are you getting it? Into t. हेलो, क्या बात समझ आई? Yes, sir. ये चैप्टर हार्ड है मगर बहुत मजेदार है. ओके, इफ यू प्रैक्टिस रेगुलरली देन आपको आ जाएगा. अब कुछ नहीं, वैल्यू डालना है. जी साइन थीटा दैट इज 10 इंटू साइन 37. भाई साइन 37 कितना होता है? 3/5. 3/5 माइनस म्यू cos 37 4/5 into t is r 0.4 omega naught 54 plus mu m दिया, m और m कैंसिल हो जाएगा. g 10 4/5 एक r और एक r कैंसिल हो गया, और ये दूसरा r और ये दूसरा r भी कट जाएगा, तो ये 0.4 निकाल ही देता हूं मैं. हेलो, आर यू गेटिंग इट ना? यस और नो? Yes, sir. इंटू टी, और हाफ का 2 ऊपर ले लेता हूँ. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग है. कितना होता है ये? 6 माइनस 0.114t दैट विल बिकम 2t. ध्यान से देखना मैं सही कर रहा हूँ क्या? हेलो, फिफ्टी फोर प्लस 0.1148t. कुछ रॉन्ग हो गया क्या? हेलो, So you didn't multiply the radius into omega naught. नो दैट आई कैंसिल फ्रॉम, सॉरी. हाँ 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 हाँ, ये 0.4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. 0.4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. यस और नो? हेलो, सही सही है ना? गेटिंग इट? तो भी नहीं आएगा यार, कुछ गलती हो रही है. आंसर क्वेश्चन देखो जरा. क्वेश्चन में ओमेगा किस तरफ है? हेलो, Same direction. हाँ, तो अल्फा किस डायरेक्शन में आएगा फिर? फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में आएगा? नीचे आएगा. फ्रिक्शन विल कम इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन because this point is slipping backward ना. I'll do it again. See, ओमेगा नॉट इधर है. कैलकुलेशन तुम लोग कर लेना. देखो, कोई बता सकता है ये जो पॉइंट है कहाँ स्लिप हो रहा है? ये बॉटम मोस्ट पॉइंट कहाँ स्लिप हो रहा है? पीछे के आगे, बैकवर्ड के फॉरवर्ड? हेलो, वेयर इज दिस पॉइंट स्लिपिंग while rolling, while rotating? Yes sir. See, Backward slip. ओमेगा नॉट, ये ऐसे जाके इधर से इधर स्लिप होगा ना, तो फ्रिक्शन स्टार्ट में स्लाइडिंग के दौरान इधर ही आएगा. यस और नो? हेलो, यू अंडरस्टैंडिंग? तो इसका जो अल्फा रहेगा वो ऐसे आएगा, और बाकी सब तो सेम है. अब हम फिर से इक्वेशन लिखते हैं. VCM इज आर ओमेगा, U प्लस AT इज आर ओमेगा, ओमेगा नॉट माइनस अल्फा टी. हेलो, डिड यू अंडरस्टैंड व्हाई माइनस अल्फा टी केम? हेलो, Yes, sir. हाँ, तो यहाँ पर प्लस अल्फा टी नहीं आएगा, माइनस अल्फा टी आएगा, बिकॉज स्लिपिंग के दौरान ये जो पॉइंट है ना, पॉइंट ऑफ सरफेस एंड कांटेक्ट, ये पीछे स्लिप होगा तो फ्रिक्शन आगे आएगा, एंड उसके कारण अल्फा उल्टा बनेगा ओमेगा नॉट से, इसलिए माइनस साइन लिखा है. तो ये तो जीरो हो गया. एक्सेलरेशन कितना रहेगा? जी साइन थीटा प्लस म्यू जी कॉस थीटा, बिकॉज फ्रिक्शन आगे है. हेलो, यू गेटिंग इट? हेलो, म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू आर इंटू टी
बाय mr²/2। क्लियर भाई बोलो। Yes, sir. अब ये क्या हो गया 10 sin 30 दैट इज sin 37 इज 3/5 तो 5 2 है तो ये 6 हो गया प्लस म्यू इज 5 into 0.5 into 5 5 into 4/5 that is 4 10t is r 0.4 omega naught is 54 minus mu is 0.5 into m और m तो कैंसिल हो गया 0.5 5 3/5 so 3 into t हो गया 3/5 into t अपॉन ये 2 भी ऊपर गया अपॉन r भाई सही है। हेलो कैन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ t नाउ भाई बोलो करेक्ट है। Yes, sir. ओके सो ऐसे ही करना है। ओके दिस इज हाउ you'll be able to do it. I'm doing the same type of sum again. ये आंसर कुछ आएगा आपको 1.2 सेकेंड्स आएगा तो नन ऑफ दीज में चला जाएगा 1.2 सेम सम आई एम रिपीटिंग इन क्वेश्चन नंबर 22 सेम सम अगेन ताकि आपको और समझ में आए। बोलो A solid sphere is rolling purely on a uniform horizontal surface with a speed u. तो इधर ध्यान देना स्टार्ट में सब लोग इधर मेरी बात सुनेंगे। ओके देखो क्या हो रहा है स्टार्ट में इट इज गोइंग center is going with u and can I say it has omega so can I say u is equal to r omega because it is rolling बराबर है ना। हेलो Yes, sir. it collides inelastically with a smooth vertical wall at a certain moment coefficient of restitution being half तो ये ऐसे आ रहा है और यहाँ पर एक दीवार है उससे टकरा रहा है और ये टकराव का कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हाफ है। कोई बता सकते हैं आफ्टर कोलिजन व्हाट विल हैपन। एक काम करता हूँ मैं दीवार है ना इधर बना लेता हूँ दीवार इधर ही बना लेता हूँ नजदीक में ताकि आपको थोड़ा और समझ आए। जैसा आया टकराया एंड इसका रेस्टिट्यूशन कितना है बेटा Half. हाफ है। कैन आई से दिस इज जस्ट बिफोर कोलिजन। हेलो हेलो अब ध्यान देना कैन एनीवन टेल मी जस्ट आफ्टर कोलिजन क्या होगा। It'll move with u/2. व्हाट अबाउट ओमेगा व्हाट अबाउट ओमेगा ओमेगा विल नॉट चेंज ओमेगा इज गोइंग टू रिमेन द सेम बिकॉज फ्रिक्शन चेंज करता है ना ओमेगा को टॉर्क चेंज करता है ना ओमेगा को देयर इज नो टॉर्क ऑन द वॉल स्मूथ वॉल है देखो। हेलो हेलो भाई वॉल इज स्मूथ ये दिस इज जस्ट आफ्टर क्या ये रोलिंग कहलाएगा अभी इज दिस रोलिंग बाबा। हेलो No, sir. नो अब ये जो जमीन है ये तो रफ है ये क्या बोलेगा मैं आपको रोलिंग करवाऊंगा मतलब थोड़ी देर बाद क्या होगा ये भी बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा हेलो ओमेगा डैश where can I say v will become r omega dash are you getting it Yes, sir. hello did you understand what am I talking about तो ये रफ ग्राउंड ने किया उसने u/2 को v बना दिया और ओमेगा को बना दिया ओमेगा डैश
अच्छा, ओमेगा को ओमेगा डैश बनाने के लिए फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में एक्ट करने वाला है, आगे के पीछे? देखो ओमेगा डैश का डायरेक्शन देखो और ओमेगा का डायरेक्शन देखो, इसके कारण फ्रिक्शन जो आएगा जमीन पे वो कहाँ एक्ट करेगा, फॉरवर्ड के बैकवर्ड, आगे के पीछे? To the right. दिस वे. हेलो, आर यू गेटिंग इट? आर यू गेटिंग इट? यस और नो? यस और नो? एंड ये Yes, sir. फ्रिक्शन ने क्या किया, ये फ्रिक्शन ने u/2 को भी कम किया और ओमेगा को भी ओमेगा डैश बनाया, उल्टा करके जीरो बना के ओमेगा डैश बनाया, बिकॉज वो उल्टा करने के लिए पहले एक पॉइंट पे जीरो बनना पड़ेगा ना. हेलो, आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट एम आई टेलिंग यू? भाई ये ओमेगा उल्टे डायरेक्शन में, ओमेगा डैश उसके दूसरे डायरेक्शन में है, तो एक पॉइंट पे तो ओमेगा जीरो होना चाहिए ना. यस और नो? हेलो, हाँ ना बोलो, So, करेक्ट है but क्या? can't it be to the left of लेफ्ट ऑफ व्हाट? देन प्योर रोलिंग friction विल नॉट can अकर act ना. to the left, right? फ्रिक्शन विल एक्ट टू द लेफ्ट. It can. No, it cannot act because omega should be this way. ओमेगा डैश होना चाहिए ना इस तरफ. ये देखो, ये डायरेक्शन ओमेगा का डायरेक्शन ऐसे Oh, है. yeah, got it. Sorry. समझना पड़ेगा. यस और नो? तो इसको तो ओमेगा डैश को उल्टा बनाने का, उल्टा बनने के लिए एक पॉइंट पे जीरो करके फिर आगे बढ़ना पड़ेगा ना. हेलो यार Yes, बोलो. sir. हाँ, ये इंपॉर्टेंट चीज है. दैट मीन्स ये जो फ्रिक्शन का अल्फा आने वाला है वो ऐसे आएगा. कैन आई से दिस दैट इज ऑपोजिट टू द इनिशियल ओमेगा. हेलो हेलो हेलो. चलो अभी मजा आएगा, अभी इधर ध्यान देना, मेरी बात सुनना. ओके, द स्पीयर विल बिगिन टू रोल आफ्टर टाइम. टाइम ही पूछा है, तो कैन आई से आफ्टर टाइम टी वी विल बिकम आर ओमेगा डैश. वी को लिख सकते हैं बेटा यू प्लस ए टी. आर ओमेगा डैश को लिख सकते हैं ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी. हेलो 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 हेलो. यार ये सब बहुत मस्त टर्म्स है यार. यस और नो? गेटिंग इट? हेलो, व्हाट इज यू का Yes, sir. वैल्यू? यू, चलो बोलो, हेल्प करो. यू का वैल्यू By कितना है? 2. q/2 है. ए कितना है बेटा? ए पीछे लगने वाला है. ए माइनस ए है कि Yes, प्लस mu. ए है? यस. व्हाट इज ए का वैल्यू? एक्सेलरेशन इज Minus. नेट फोर्स अपॉन टोटल मास. नेट फोर्स कितना है? फ्रिक्शन है. फ्रिक्शन इज म्यू एम जी. हेलो, अरे बोलो भाई. टोटल मास, आर यू गेटिंग इट? म्यू एम म्यू 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 म्यू. यस और नो? हेलो, यस और नो यार. आर आर आर. चलो बोलो, ओमेगा नॉट कितना है? ओमेगा नॉट क्या है? हेलो, ओमेगा नॉट क्या है? ओमेगा नॉट इज ओमेगा ना. यस और नो? हेलो, आई ऑल अंडरस्टैंडिंग और नॉट? दिस ओमेगा नॉट इज माइनस ओमेगा बिकॉज अल्फा को पॉजिटिव पकड़ना है. एंड अल्फा विल बिकम टॉर्क बाय आर. टॉर्क इज म्यू एम जी into r by I solid sphere is 2/5 mr square into t. Hello, are you getting it? Yes, sir. देखो ना, अल्फा को प्लस लिखना है ना, बिकॉज वैसे ही घुमाना है ना स्टार्ट में एंड में, बिकॉज ओमेगा डैश पॉजिटिव है एंड ओमेगा डैश किसके डायरेक्शन में है? अल्फा के डायरेक्शन में है. ओमेगा नॉट तो नेगेटिव होगा ना, बिकॉज वो उल्टा है उसका. तो ये हो जाएगा u/2 माइनस म्यू जी टी आर. ये कैंसिल, आर एक कैंसिल, आर एक कैंसिल. तो म्यू जी टी बाय 5/2 म्यू जी टी कितना होता है? 5/2 म्यू जी टी बाय आर माइनस ओमेगा, दिस ओमेगा. बट ओमेगा इनिशियली इज व्हाट? यू बाय आर, बिकॉज दिया यू है ना आपको. हेलो हेलो
आप सब कंफ्यूज हो गए क्या? हेलो, यस और नो, यू गेटिंग इट? Yes, sir. नाउ हाउ टू सॉल्व? ये क्या हो जाएगा? देखो ना, ये आर 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 और आर कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा u बाई टू प्लस यू, ये म्यू जी टी प्लस 5/2 म्यू जी टी, तो 3/2 u is equal to 7/2 mu gt, 2 cancel, so t will become 3u by 7 mu g. कुछ है क्या यार? हाँ, हेलो 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 हेलो, समझा क्या? Yes, sir. हाँ भाई, तो एक एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा इसमें। मतलब पुराना सम, ये वाला सम भी सेम था, आपको थोड़ा सी प्रैक्टिस का जरूरत है, एंड यू विल गेट द रिजल्टेंट आंसर। ठीक है, I'll do the last question, that is 25th question. Pay attention over here, है ना? ये जो सम है, ये अच्छा वाला सम है, सिलेक्टेड। अब सब लोग इधर मेरी बात सुनेंगे। 25th and 26th are same only. A uniform slender rod of mass m and length is released from rest with the lower end touching a frictionless horizontal floor. At the initial moment, the rod is inclined at an angle 30 degree with the vertical. The value of normal reaction from the floor just after the release. सब लोग इधर बात सुनो, क्या हो रहा है? ये ग्राउंड है। Initially the rod is this way. Can I say it is at an angle of 30 degree? बोलो, yes or no? Yes, sir. अच्छा, इसको नीचे कौन लेके जाएगा? नीचे गिराएगा कौन उसको? Gravity. Where is gravity acting at the center of mass? यहाँ पर आपको नॉर्मल रिएक्शन मांग रहा है। ये हिंज पॉइंट नहीं है, ये ऐसे ही है, ये फ्री एंड है पूरा। Just after the release, I need the normal reaction. Okay. अब कैन यू टेल मी, एक बात आप मुझे बता सकते हो कि देखो एक्चुअली ये सम करने से पहले मैं थोड़ा सी है ना कॉन्सेप्ट क्लैरिटी दे देता हूँ आपको। एक काम करते हैं, बुक है आप लोग के पास? हेलो, ये सम हम लोग बाद में करेंगे, एक सम मैं आपको सिखाता हूँ विच इज गिवन इन द सॉल्व्ड एग्जांपल्स। आई जस्ट so that you all can get concept clarity of the thing. है बुक है आप लोग के पास? You have the book? Yes, sir. Just open to page number. This is very important question it is. हाँ, पेज नंबर 167 पे आ जाओ बेटा। पेज नंबर 167, एग्जाम्पल 14। ध्यान देना सब लोग, अभी मेरी बात सुनना। ये क्या बोल रहा है, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ फिर बाद में हम लोग देखते हैं। सॉल्व तो है ही उधर। अ थिन यूनिफॉर्म रॉड of mass m and length L is standing on a smooth horizontal surface. A slight disturbance causes the lower end to slip on a smooth horizontal surface and the rod starts falling. Find the velocity of the center of mass of the rod at the instant when it makes an angle of theta with respect to horizontal. अब देखो एक्चुअली हुआ क्या है कि जमीन है, ये रॉड है, ये रॉड का सेंटर है। कैन यू टेल मी विच एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन द रॉड? हेलो, अरे भाई कुछ आंसर दो।
Which is acting is smooth surface, तो smooth है. Gravity. Where is gravity acting? At the center of mass. हाँ, downward. हेलो, बराबर है ना? Can I say since the force is vertical, the falling of the center of mass should also be which direction बेटा? Vertically downwards. Vertically downwards होंगी. मतलब क्या? ये रॉड थोड़ा टेढ़ा होगा, तो टेढ़ा होगा तो कैसे होगा? सेंटर ऑफ मास यही पाथ फॉलो करेगा. मतलब पहले सेंटर ऑफ मास इधर था, अब इधर आ जाएगा, तो रॉड ऐसे हो जाएगा. हेलो, आर यू गेटिंग इट? यस और नो? Yes, sir. थोड़ी देर बाद जब वो गिरेगा ना, पूरा गिर जाएगा ना, तो रॉड जो है ना उसका आधा पार्ट इधर आ जाएगा और आधा पार्ट इधर आ जाएगा, सच दैट सेंटर ऑफ मास इधर ही है. दैट मीन्स सेंटर ऑफ मास इज ओनली फॉलोइंग दिस पाथ. आर यू अंडरस्टैंडिंग? हेलो, मैं क्या बोलना sir. चाह रहा हूँ, समझ में आ रहा है? सब लोगों को समझ आ रहा है? हेलो, ये कॉन्सेप्ट है कि भाई सेंटर ऑफ मास विल बी फॉलोइंग द ट्रैजेक्टरी इन द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स. हेलो हेलो, हाँ ना बोलो यार, क्लियर है ना? सो इसी को देखते हुए कॉन्सेप्ट क्या कहना चाह रहा है, आपने एक मेथड डेवलप किया इन्होंने, कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन. इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? ये पहले तो ऐसे ही था, सेंटर ऑफ मास इधर था. अब थोड़ी देर बाद सेंटर ऑफ मास सपोज नीचे आ गया एंड द रॉड बिकम्स टेढ़ा. Are you getting it? Hello. Can anyone tell me where is the acceleration of center of mass downward? सही है? सही है क्या? Hello. And Yes. where is the acceleration of this point? Right. This way. Point P पकड़ते हैं इसको. Hello. Okay. अब इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि आप लोग है ना परपेंडिकुलर टू AC एक लाइन बनाओ, एंड परपेंडिकुलर टू AP और एक लाइन बनाओ. जहां पर ये मिल रहा है ना, ये उसका इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन है. हेलो, गेटिंग इट और नॉट? मतलब इस पॉइंट पर, इस इंस्टेंट पर ये जो डॉटेड डॉटेड वाला रॉड है वो घूम रहा है. यस और नो? हेलो, Yes, sir. आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस और नो? ये इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन का कॉन्सेप्ट है कि भाई दोनों जो A है उसका परपेंडिकुलर लाइन बनाओ, जहां पर वो मिलेगा दैट इज द इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन अबाउट दैट पॉइंट. ओके, इट विल रोटेट इंस्टेंटेनियसली विद एन ओमेगा. जनरली तो अल्फा हो रहा है, चेंज हो रहा है, बट एट दिस इंस्टेंट इट इज रोटेटिंग विद ओमेगा एट दिस पॉइंट. ओके, अब यहां पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि देयर इज डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी एंड देयर इज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द थिंग. अच्छा, ये एंगल कितना बोला उसने? ये है ना, है कि नहीं बेटा? तो ये कितना हो जाएगा? ये L/2 है. कैन आई से दिस इज L/2 cos theta and this is L/2 sin theta. This is agreed? Do you agree? Yes, sir. अच्छा, can anyone tell me how much is the change in potential energy? पहले पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी? सेंटर ऑफ मास पे थी ना, तो mg L/2 था पहले. अब कितना हो गया?
अब यार सेंटर ऑफ मास कितना गिर गिर गया नीचे, L/2 1 minus sin theta. ये h है ना बेटा, तो इट इज mg L/2 1 minus sin theta. डू यू अग्री? हेलो 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 यार, mg h है ना, L/2 minus L/2 sin theta, ये हो गया इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी. कोई बता सकता है व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी at this point, at the instantaneous axis of rotation? Can I say it is half I omega square? हेलो, बिकॉज वरना मुश्किल हो जाता ना बेटा, वरना काइनेटिक एनर्जी में लिखता कैसे? आर यू गेटिंग इट व्हाट्स हैपनिंग? Yes, sir. वरना मुश्किल हो जाएगा भाई. तो कैन आई से mg L/2 1 minus sin theta is half I. What is I about this point? I about this point. I about this point क्या होता है? ml square by 12 plus mass into distance square ना बेटा. हेलो, डिस्टेंस स्क्वायर क्या रहेगा? L/2 cos थीटा का स्क्वायर. आर यू गेटिंग इट? हेलो 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 हेलो, बैटरी खत्म हो जाएगा भाई. क्लियर है क्या बेटा? हाँ ना बोलो, क्लियर है? ml Yes, square sir. by 12 plus mass into distance square about the instantaneous axis of rotation. सही है ना? One second. It's not charging, man.